Good morning to all. In the last class, we have started the agriculture, in which we have completed the institutional reform, that is land reform. Now, today we are going to start the next, that is technical reform. At the it, in which we have to study the Green Revolution. At independence, about 75% of the country's population was dependent on the agriculture. Productivity in the agriculture sector was very low because of the use of old technology and the absence of the required infrastructure for the vast majority of the farmers. India's agriculture widely depends on the monsoon, and if the monsoon fell short, the farmers were in trouble unless they had excess of irrigation facilities, which very few of them had. The stagnation in the agriculture during the colonial rule was permanently broken by the Green Revolution. Okay, at the independence, we have seen that about 75% of the country's population is dependent upon the agriculture, but the productivity in the agriculture sector was very low. Because of the low productivity, we have not we have not such kind of technology, such kind of resources we have to produce the large amount of the production, and the absence of the required infrastructure. Still we don't have the availability of the various infrastructure. India's agriculture widely depends upon the monsoon, जो और इंडिया का जो भी वो था एग्रीकल्चर सेक्टर था was totally depend upon the monsoon. एंड इफ़ द मानसून फेल शॉर्ट, अगर मानसून क्या आता था नहीं हो पाता था, अगर मानसून नहीं आता था तो द फार्मर्स वर इन ट्रबल अनलेस दे हैड एक्सेस टू इरिगेशन फैसिलिटी. ठीक है, तो अगर नहीं आता था तो वो लोग क्या था कि बिकॉज ऑफ दैट उन फार्मर्स को क्या कहता, इरिगेशन फैसिलिटीज़ सारे जितने भी इंडिविजुअल जितने भी फार्मर्स थे सबके पास ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी. ओनली रेयर ऑफ द फार्मर्स हैव द इरिगेशन फैसिलिटीज़, कि अगर दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द मानसून. अगर मानसून नहीं आता है तो फिर क्या होता था कि बहुत रेयरेस्ट फार्मर्स थे जिनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होती थी, जैसे रिवर हो गया, वेल हो गया, बट most of them they don't have the irrigation facilities. The stagnation in the agriculture during the colonial rules was permanently broken by the Green Revolution. Okay, जो भी stagnation था agriculture sector में, जो एकदम constant हो गया था, there was no development in the agriculture sector. It is permanently removed or broken by the introduction of the Green Revolution. Green Revolution refers to the large increase in the production of food grains resulting from the use of HYV seeds, especially for wheat and rice. Green Revolution क्या था कि refers to large increase in production of food grains. When the Green Revolution was introduced, it sees that there is large increase in the production of food grains because of the use of the HYV seeds. HYV seed, that is high yielding variety seeds, especially for the wheat and the rice. The Green Revolution is introduced by MS Swaminathan in India, but when we talk about the world, it is introduced by the Norman Borlaug. ओके कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो इंडिया में MS स्वामीनाथन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बट अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये आपका नॉर्मन बोरलॉग थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था. और ये जो इसका इंट्रोडक्शन था वो अप्रॉक्स 1960 और 1970 के बीच में हुआ था. वही 1966 और अप्रॉक्स यही इसका था. और क्या था ये जो इसमें नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स in the correct quantities as well as regular supply of water. The application of these input in correct proportion is vital. Okay, जो भी हम
इन सीड्स का यूज़ कर रहे थे उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी? फॉर द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। हम क्या करेंगे कि फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं जो हमारे फूड ग्रेन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, जो वाटर की सप्लाई भी क्या हो वो रेगुलरली हो। द एप्लीकेशन ऑफ दीज इनपुट इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज़ वाइटल। ठीक है, अब इनका भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इन सारे इनपुट्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इट शुड ऑल्सो बी इन करेक्ट प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं कि सप्लाई ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा कर दिया, पेस्टिसाइड्स एकदम ही नहीं दिया, तो नहीं, इनको भी क्या करना है, करेक्ट प्रोपोर्शन में करना था। इंडिया अडॉप्टेड HYV प्रोग्राम इन 1966। ओके, सी हियर, इंडिया अडॉप्ट किया था HYV सीड प्रोग्राम कब? 1966 में, विच वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ HYV of seeds, sufficient irrigation facilities and use of fertilizer and pesticides. Okay, India was introduced this HYV program, Green Revolution, in 1966, and it is successful because of the proper facility of HYV seeds, irrigation facilities, as well as use of the proper fertilizer and pesticides in the same proportion. That's why it is called the Green Revolution. Next, the farmer who could benefit from HYV seeds require reliable irrigation facilities as well as financial resources to purchase fertilizers and pesticides. ओके, जो भी फार्मर्स इससे बेनिफिट हो रहे थे HYV सीड्स को यूज़ करने से, ग्रीन रिवॉल्यूशन से, उन्हें क्या था कि उन्हें रिक्वायर किस चीज़ की थी? प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिले, कि वो क्या करें, इरिगेशन फैसिलिटी, एज वेल एज उन्हें फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन मनी की भी जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो अवेलेबिलिटी होती रहे, उनको ऐसा ना हो कि लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो, टू परचेज फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। तो जैसे वो अपने फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को वो परचेज कर सकें। एज अ रिज़ल्ट, इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन approx mid 1960 to 1970, the use of HYV seed was restricted to the more affluent states such as Punjab, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ओके, कि इन स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज़ में क्या था कि ये बस कुछ एफ्लुएंट जो स्टेट्स होते थे उन्हीं तक ये लिमिटेड था HYV सीड्स, लाइक आंध्र, पंजाब एंड तमिलनाडु। फर्दर द यूज़ ऑफ HYV सीड्स प्राइमरली बेनिफिट द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। फिर फर्दर क्या हुआ कि इन HYV सीड्स का जो यूज़ था वो वैसे स्टेट में स्पेसिफ़िकली होने लगा जहाँ पे ये वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। बेसिकली इसका जो यूज़ किया गया उसको हम लोगों ने वीट और राइस पे ही किया। फर्स्ट फेज़ में ये जो एफ्लुएंट स्टेट होते थे पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु, वहाँ पे यूज़ किया गया, बट आगे फर्दर क्या हुआ कि ये बस बेसिकली HYV सीड्स का यूज़ हम वहीं करने लगे जहाँ पे वीट का प्रोडक्शन होता था। इन द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन बिटवीन 1970 to 1980, द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट एंड बेनिफिट मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। ओके, इन सेकेंड फेज मोस्ट ऑफ द स्टेट enjoyed these variety of crops and produce more and more type of more variety of crops, and large number of state were using these type of HYV seeds. The spread of green revolution technology enabled India to achieve self sufficiency in fruit grains. Okay, जब ये green revolution spread हुआ in India में, तो India was in condition of self sufficiency especially in the food grains. We no longer had to be mercy of America and any other of nation for meeting our nation food requirement. Now we are not dependent on the other country, America and others nation for the meeting of the our nation food program. जो भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती थी, अब हम क्या थे, अब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए, अब हमें किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट होने की नीड नहीं थी। अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, first one is commercialization of agriculture. If large proportion of increased agriculture produced is sold in the market by the farmers, the higher output can make difference to the economy. Okay, अभी क्या हो रहा था कि जो प्रोडक्शन था कमोडिटी का, मीन्स जो भी फूड ग्रेन्स थे वो पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा होने लगे,
तो इसमें क्या था कि इफ़ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट, कि जो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस किया गया था प्रोडक्ट, अगर उनको क्या है कि मार्केट में सोल्ड करने लगे, द हायर आउटपुट कैन मेक अ डिफरेंस टू द इकॉनमी। जो हायर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था वो बहुत ज़्यादा इकॉनमी में डिफरेंस करने लगा। पहले हमारी इकॉनमी ग्रोथ इतनी नहीं कर रही थी, बट अभी क्या था कि जब हम लोग मोर गुड्स का प्रोडक्शन करें तो इससे क्या था कि इकॉनमी में डिफरेंस वी कैन सी दैट एग्रीकल्चर बिकम दी बोथ सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है कि बोथ है, सब्सिस्टेंस भी है, मीन्स कि फ्रॉम विच वी कैन मैक्सिमाइज आर बेसिक नीड्स, कि हम बेसिक जो भी हमारी नीड्स होती थी उनका फुलफ़िल कर लेते थे। वी कैन फुलफ़िल आर बेसिक नीड्स स्पेशली फॉर द फूड ग्रेन्स एंड द कमर्शियल फार्मिंग। मीन्स कि हम इतना हमारे यहाँ प्रोडक्शन होने लगा कि हम अपनी सब्सिस्टेंस नीड तो फुलफ़िल कर ही रहे थे फूड अटेन करने की। अभी से क्या था कि जब बहुत एक्स्ट्रा जब प्रोडक्शन हो जा रहा था तो उसको हम लोग मार्केट में ले जाके सोल्ड आउट भी कर रहे थे एंड देन वी अर्न अ प्रॉफिट। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू क्या हुआ, मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस भी हुआ। व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस? इज मार्केटेबल सरप्लस refers to the that part of agriculture produce which is sold in the market by the farmer after fulfilling their own consumption requirement. ओके, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता था कि वो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस जो कोई भी फार्मर क्या करता था अपने मिनिमम सब्सिस्टेंस के लिए क्या करता था, उसको छोड़ देता, रख लेता था रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी कंजप्शन रिक्वायरमेंट के लिए, फिर उसके बाद वो क्या कर देता था, उसको मार्केट में सोल्ड कर देता था। मीन्स अपने सरप्लस को पहले वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए रख लेता था कि वो जो भी अपनी फुल बेसिक नीड है फूड की उसको फुलफ़िल कर ले, और जो एक्स्ट्रा है इसके पास वो उससे क्या कर देता था, उसको मार्केट में सोल्ड कर देता था। तो ये कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विल ऑल्सो स्टार्टेड। अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ द राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड was sold by the farmers in the market. ओके, वही जो गुड प्रोपोर्शन व्हीट एंड राइस का होने लगा प्रोडक्शन, तो उसको फार्मर्स क्या थे मार्केट में सोल्ड भी कर दे रहे थे। एज अ रिज़ल्ट द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन डिक्लाइन रिलेटेड टू अदर आइटम ऑफ कंजप्शन। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जब आप लोग तो पता ही कि डिमांड क्या हो गया, सप्लाई क्या हो गई कि जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो गया था कि उसकी प्राइस क्या हो गई थी, डिक्लाइन कर गई थी। मींस एज़ कंपेरिजन टू अदर आइटम्स, कि अभी क्या है वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वीट का जो इतना ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो गया है, तो हम अगर दूसरे कमोडिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखे थे कि लोग क्या है, अगर वीट को यूज़ उतना ही करेंगे ना जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है, तो अदर आइटम के कंपैरेटिवली प्रोडक्शन किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस भी क्या कर गई थी, डिक्लाइन कर गई थी। द लो इनकम ग्रुप हु स्पेंट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड बेनिफिट फ्रॉम द डिक्लाइन इन द रिलेटिव प्राइस। जो लो इनकम ग्रुप के इंडिविजुअल थे वो क्या थे, पहले वो दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर नीड्स स्पेशली इन द फूड क्रॉप, बट अभी क्या था, वो लोग क्या था कि अब प्राइस के डिक्लाइन होने से वो उनका भी कंजप्शन कर ले रहे थे। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड अ स्टॉक विच कुड बी यूज इन टाइम ऑफ फूड स्टोरेजेस। अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट ये भी इनेबल हो गई कि जब कोई भी कमोडिटी का वीट राइस ये सब का ओवर प्रोडक्शन हो रहा था तो उसको एज अ स्टॉक वेयर हाउस में भी वो रख ली, कि इन केस ऑफ फूड शॉर्टेज अगर ऐसा प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करेगी कि अपने वेयर हाउस और स्टोरेज से उसको वहाँ से विदड्रॉ करके उसको यूज़ कर सकती है। तो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि अबंडेंट हो गया था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये भी किया कि उसको एज अ स्टोर भी करके रख लेते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। द ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन मल्टीपल राइज इन फूड प्रोडक्शन। कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट ये हो गया था कि मल्टीपल राइज हो गया था फूड प्रोडक्शन में, फूड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। इट हेल्प्ड इन रिकवरिंग द कंट्री फ्रॉम रेगुलर फूड शॉर्टेज इन द प्री रिवॉल्यूशन पीरियड। ओके,
प्री रिवॉल्यूशन मीन्स कि जब ये रिवॉल्यूशन आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके पहले कि कंपैरेटिवली इंडिया क्या थी, अपने को रिकवर करी थी फ्रॉम दी रेगुलर फूड शॉर्टेज। जो उसको रिवॉल्यूशन के पहले शॉर्टेज को फील करना पड़ा था, शॉर्टेज को फेस करना पड़ रहा था, वो अब क्या था, वो इंडिया उस सिचुएशन से रिकवर कर गई थी। द यूज़ ऑफ HYV ऑफ सीड्स brought manifold increase in the production of land in respect of food grains। ओके, जो HYV सीड के यूज़ करने से जो प्रोडक्शन लैंड का प्रोडक्शन था वो भी मैनीफोल्ड मीनिंग होती है कि मल्टीपल टाइम्स, कि वो भी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो गया था एज़ कंपेरिजन टू द फूड ग्रेन्स। क्योंकि अभी क्या था, हम लोग प्रॉपर फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे थे और कैसे कैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी, इन सारे की फैसिलिटीज़ के थ्रू जो लैंड का प्रोडक्टिविटी था वो भी क्या था, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो गया था। The rate at which production increase was continuously rising। The rate at which जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन जिस रेट से इंक्रीज़ हो रहा था वो भी कंटिन्यूसली क्या था, डे बाय डे इट स्टार्ट टू राइजिंग। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इन generating opportunities of employment. It led to effective use of labor and absorption of excess labor force in agriculture। ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन से क्या हो गया था कि इट जनरेट दी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड लेड टू इफेक्टिव यूज़ ऑफ लेबर। कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन देयर इज़ इफेक्टिवली यूज़ ऑफ लेबर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा लेबर। जो भी एक्सेस लेबर थे पर्टिकुलरली किसी एरिया में, वहाँ से वो एब्जॉर्ब करके प्रॉपर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करा था। इंक्रीज़ इन इनकम। When the people are in condition to have a employment, then they will also enable to generate a income। okay, कि अगर उनको क्या है कि अगर उनको employment opportunities provide कर दी जाएगी, then he or she is also able to incur more and more income also। The adoption of green revolution increased the income of the farmers। Initially, benefit of the increase in income were enjoyed by the farmer of few states like Punjab, Tamil Nadu, Haryana and Uttar Pradesh, but later on benefit spread to large number of state। okay, अभी क्या था कि जो इनकम थी बेसिकली फॉर द फार्मर्स इट विल ऑल्सो इंक्रीजेज। पहले जो इसका इंट्रोडक्शन था वो कुछ एफ्लुएंट स्टेट में हुआ था, जैसे अभी पढ़ा था हम लोगों ने, बट अब क्या था कि वो पूरे ओवरऑल स्टेट में क्या था, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा था। ऑल द स्टेट यूजिंग HYV सीड्स, बिकॉज ऑफ दैट द इनकम ऑफ द फार्मर्स ऑल्सो इंक्रीजेज। नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी। The spread of green revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. India no more was dependent on the foreign countries in this regard। okay, now the country is able to self-sufficient in food item and they are not dependent now to for their food sufficiency or food requirement। okay, next is industrial development as a result of green revolution। ग्रीन रिवॉल्यूशन के रिज़ल्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ। मैनी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी एक्सेट्रा वर इस्टेब्लिश्ड। देयरफॉर देयर वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी क्या हुई, डेवलप्ड हुई, इस्टेब्लिश्ड हुई, जो क्या प्रोड्यूस करी थी, केमिकल्स प्रोड्यूस करी थी जो यूज़ हो रहा था प्रोडक्शन में क्रॉप के, फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करी थी, जो पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस करी थी, जो मशीनरी प्रोड्यूस करी। तो ऐसी टाइप की भी इंडस्ट्रीज़ क्या हुई, सेटअप हुई। देयरफॉर देयर वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे देख रहे थे बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। Now we have also faced some shortcomings of the green revolution. What are they? Let's start. While the nation has immensely benefited from the green revolution, the technology involved was not free from risk। okay, we have seen that कि हम लोग क्या था, बहुत मोस्ट मतलब वास्टली क्या कर रहे थे, उसका ग्रीन रिवॉल्यूशन
का जो रिज़ल्ट था उसको फेस कर रहे थे, बेनिफिट ले रहे थे, बट देयर ऑल्सो सम टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे थे जो रिस्क से फ्री नहीं थी। इंक्रीज इन डिस्पैरिटी बिटवीन दी स्मॉल एंड बिग फार्मर। ओके, क्या थी यहाँ पे कि देयर इज़ इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटीज़ और डिस्क्रिपेंसीज किसके बीच में फाइंड आउट हो गई थी, बिटवीन द स्मॉल एंड द बिग फार्मर्स। जो भी बिग और स्मॉल फार्मर्स थे उनके बीच में देयर इज़ डिस्क्रिपेंसीज फाउंड। ऑन सच रिस्क वॉज द पॉसिबिलिटी that it would increase the disparities between the small and big farmers, since only the big farmers could afford the required inputs, thereby reaping most of the benefits of the green revolution. Green revolution further increased the income inequalities in the villages. Due to green revolution, the rich farmers earn more revenues as comparison to poor farmers because of the lack of funds with them. Okay, देखिए सबसे बड़ा रिस्क क्या हो गया बिग फार्मर्स और लार्ज फार्मर की, कि ओनली लार्ज फार्मर्स was able to purchase and to use the all the incentives and all the facilities which is provided by the government. कि वो क्या थे, वो जितनी भी लार्ज फार्मर्स थे उनके पास ही क्या होता था, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड होता था, तो वो क्या करते थे कि वही एबल होते थे कि वो जो भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है उसको वो एक्वायर कर सके, कि वो सारे जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र है, ये सब का प्रॉपरली यूज़ कर ले। तो इसकी वजह से क्या था कि देयर इज़ डिस्क्रिपेंसीज फाउंड बिटवीन दी स्मॉल एंड दी बिग फार्मर्स। और स्मॉल फार्मर्स क्या थे, दे आर नॉट एबल टू एक्वायर दोज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन दी इनकम ऑफ दी बोथ बिग एंड दी स्मॉल फार्मर। कि उनकी वजह से क्या हो गया कि अब वो प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे थे, वो कमोडिटी का प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज दे डोंट हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ दी ऑल दी फैसिलिटीज़। तो इनके बीच में क्या हो गया कि डिफरेंस हो गया किस उनके इनकम का, कि बिग फार्मर्स प्रोडक्शन कर रहे थे, बाई प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी द इनकम जनरेशन विल बी हेल्ड, बट उसमें क्या था, स्मॉल फार्मर्स तो प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। तो उनकी इनकम क्या थी, लेस अमाउंट में थी। तो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से एक डिस्क्रिपेंसीज भी फाउंड हो गई बिटवीन दी स्मॉल एंड दी लार्ज फार्मर्स। Second is risk of pest attack. Moreover, the HYV crops were also more prone to attack by pest. The small farmers who adopted this technology could lose everything in a pest attack. However, the risk of the pest attack was considerably reduced by the services rendered by the research institute established by the government. देखिए जो HYV क्रॉप थे वो ऑल्सो मोर प्रोन टू अटैक बाय द पेस्ट, वो और ज़्यादा इसमें चांसेस थी कि जो पेस्ट थे, जो भी वो क्या करते थे, अटैक कर देते थे। जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको सारे पेस्ट बोलते हैं ना, कि वो क्या थे, अटैक ज़्यादा करते थे। द स्मॉल फार्मर हु अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड लूज़ एवरीथिंग इन अ पेस्ट अटैक। कि कोई भी जो स्मॉल फार्मर थे वो इस अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन को, तो उससे क्या होता कि उनके पेस्ट अटैक से वो सब कुछ अपना लूज़ कर दे रहे थे। हाउएवर द रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक वॉज considerably reduced by the services rendered by the research institute established by the government. Okay, ये जो रिस्क था पेस्ट अटैक का वो क्या था, रिड्यूस हो रहा था बाय द सर्विसेज जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था, उसके थ्रू ये जो अटैक था पेस्ट का वो डे बाय डे इसको क्या किया जा रहा था, इसको रिड्यूस किया जा रहा था। लिमिटेड क्रॉप्स, द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ कन्फाइंड टू द लिमिटेड crops like wheat, rice, bajra, maize, etc. It has limited effect on commercial crops like tea, rubber, jute, etc. सबसे इसमें क्या था, एक बड़ा बहुत बिग डिसएडवांटेज ये था कि इट इज़ कन्फाइंड विद द लिमिटेड क्रॉप्स लाइक वीट, राइट, बाजरा एंड मेज़, बट इसका इफ़ेक्ट हम लोग कॉमर्शियल क्रॉप में नहीं देख पा रहे थे। कॉमर्शियल मीन्स कि जो हम लोग उसको विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट, तो उसको हम लोग टी, रबर, जूट, दिस काइंड ऑफ आइटम्स पे हम लोग इसका इफ़ेक्ट नहीं देख पा रहे थे। बस HYV सीड्स का जो इफ़ेक्ट था विच
always shown on the wheat, rice, bajra and maize. Next is regional imbalance. Effect of green revolution has been only in Punjab, Haryana, Tamil Nadu, Maharashtra, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. Thus there was regional inequalities. Okay, the effect of green revolution is focused on these states, but some states are out of it, and there is regional inequalities between some states where it is not found and the state where it is can be implemented. Next is, however, these fear did not come true because of steps taken by the government. ठीक है, फिर ये भी था कि ये जो फेयर था वो नहीं आया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने इसके भी अगेंस्ट में कुछ स्टेप्स ले रखे थे. द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन एट द लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स. ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि लोन को प्रोवाइड कर दिया था बेसिकली फॉर दी जो स्मॉल फार्मर्स थे, कि उन स्मॉल फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड कर दिया था एट द लो इंटरेस्ट रेट. उनको वो बस स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट को देना पड़ता था और बेसिकली उनको लोन प्रोवाइड किया. गवर्नमेंट ने ये सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की थी. द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र सो दैट फार्मर्स कुड आल्सो हैव एक्सेस टू दी नीडेड इनपुट. ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया गया था, सब्सिडाइज मीन्स फर्टिलाइज़र्स पे और भी अदर पे इंसेंटिव्स पे क्या करते, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ प्रोवाइड किया था सो डैट कि एवरी फार्मर्स कैन बी अफोर्ड दैट प्रोडक्ट. Since the small farmers could get the required input, the output on small farms could equate with the output on the large farms. ठीक है, ये सारी अगर सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी थी तो जो भी स्मॉल फार्म्स थे वो भी एक इक्वालिटी थे विद द लार्ज फार्म, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ जो लार्ज फार्मर्स यूज़ करते थे अपनी लार्ज फार्म पे वो अब स्मॉल फार्मर्स भी यूज़ कर सकते थे बिकॉज ऑफ दे हैव द अवेलेबिलिटी एंड फैसिलिटी ऑफ द लोन एंड द सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट. The risk of pest attack was reduced by the services rendered by the research institute established by the government. Okay, जो risk था pest attack का, it was also decreased or reduced because of the services which is provided by the research institute which is developed or established by the government. कि जो भी पेस्ट अटैक था उसको भी क्या था, रिड्यूस कर सकते थे कि वो सर्विस गवर्नमेंट ने कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर दी थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर दी गई थी कि जो रिस्क है पेस्ट अटैक का उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. एज अ रिज़ल्ट द आउटपुट ऑन स्मॉल फार्म्स इक्वल्ड द आउटपुट ऑन लार्ज फार्म. ठीक है, जो आउटपुट हमको स्मॉल फार्म से निकल रहा था इट वॉज जस्ट इक्वल टू द लार्ज फॉर्म्स इन दी कोर्स ऑफ टाइम. जो टाइम के कोर्स के साथ, टाइम के चेंजेस के साथ उसमें इक्वालिटी आने लगी कि स्मॉल फार्मर्स भी प्रोड्यूस मोर ऑफ द गुड्स. देयरफॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स. ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन वुड हैव फेवर्ड द रिच फार्मर्स only if the state did not play an extensive role in the ensuring that the small farmers also gain from new technology. Okay, from the green revolution both the small as well as large farmers benefited, and green revolution would have favored the rich farmers only. ग्रीन रिवॉल्यूशन रिच फार्मर को तभी ही फेवर करता था इफ़ द स्टेट डिड नॉट प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन द इंश्योरिंग, कि जब कोई भी स्टेट है वो एक एक्सटेंसिव रोल प्ले नहीं कर रहा था कि इंश्योर करने के लिए कि स्मॉल फार्मर आल्सो गेन फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी. ओके, तब उसी कंडीशन में ग्रीन रिवॉल्यूशन फेवर कर रहा था रिच फार्मर का इफ़ द स्टेट डिड नॉट प्ले एनी एक्सटेंसिव रोल. स्टेट क्या थी, कोई एक्सटेंसिव रोल प्ले नहीं कर रहे थे इन इंश्योरिंग दैट, ये इंश्योर करने के लिए दैट द स्मॉल फार्मर्स आल्सो गेन फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी, कि स्मॉल फार्मर्स वो भी क्या कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से गेन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज debate over subsidies. Subsidies refers to the availability of the inputs at lower price than the market price. Okay, we know what is subsidies, कि the availability of inputs at the lower price as comparison to the
market price. The economic justification of subsidies in agriculture is at present a hotly debated question. It is generally agreed that it was necessary to use subsidies to provide an incentives for adoption of new HYV technology by farmers in general and small farmers in particular. ठीक है कि ये अभी के टाइम ये बहुत हाईली डिबेटेड क्वेश्चन हो गया है कि जो हम लोग सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक, अगर कोई सब्सिडीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा होगा कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं एंड दैट फार्मर्स विच दे आर नॉट एबल टू purchase all the things, so that when the price is reduced than the market price, he or she will able to purchase those commodity. तो परचेज दैट टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, तो वो उससे क्या कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं वेयर दी HYV टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स आर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर ऑल. तो हमारे लिए ये सारे कुछ प्रेजेंट है. तो हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि अगर सब्सिडीज़ प्रोवाइड किया जाएगा तो क्या हो पाएगा, कोई भी फार्मर क्या है वो उनको अडॉप्ट कर सकता है. एनी न्यू टेक्नोलॉजी विल बी लुक्ड अप एज बिंग रिस्क बाय द फार्मर्स. ओके, कोई भी अगर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो कोई न्यू टेक्नोलॉजी अगर इंट्रोड्यूस होती है तो वो किसी भी फार्मर के लिए क्या हो जाएगा, बहुत रिस्क हो सकता है. सब्सिडीज़ वर देयरफॉर नीडेड टू इनकरेज फार्मर टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी. फार्मर्स को क्या, तब कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना चाहिए सो दैट इट इनकरेज द फार्मर्स टू यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो. The first question is why subsidies should be given. कि why the government should given the subsidies. गवर्नमेंट को subsidies क्यों देना चाहिए? The government should provide farmers with agricultural subsidies as farming in India is a risky business and needs to be encouraged to adopt new technology. जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए फार्मर्स को एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़, बिकॉज जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, फार्मिंग इन इंडिया इज़ रिस्की, बिकॉज कोई भी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी मानसून आएगा कि नहीं, कोई भी फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो ऐसी कंडीशन में ये जो एग्रीकल्चर है और फार्मिंग है बहुत रिस्क है. तो इसलिए क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए सब्सिडीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए. Next is most of the farmer are very poor and will not able to afford the cost of the new technology if subsidies are not given. अगर subsidies नहीं provide करते हैं तो जो सारे farmers हैं वो क्या हैं, they are poor and not able to afford the new technology, so that subsidies should be given. Eliminating subsidies will increase the inequality between the rich and poor farmers and violate the ultimate goal of equity. अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं सब्सिडीज़ को तो इट विल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दी लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स, कि बस लार्ज फार्मर ही क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे. तो इससे क्या होगा, एक डिस्क्रिपेंसीज और डिस्टिंग्विश हो जाएंगे दोनों स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स, और ये जो हमारा गोल है इक्विटी का, इट विल नॉट बी completed. The argument was that the subsidies should be given only to poor farmers as these were largely benefiting to the fertilizer industry and big farmers only. There is also argument that the subsidies should be given only to poor farmers. कि जो फार्मर ओनली जो पुअर फार्मर्स हैं उन्हीं को क्या करना चाहिए, सब्सिडीज़ देना चाहिए, एज दीज वर लार्जली बेनिफिटिंग द फर्टिलाइज़र एंड बिग फार्मर्स ओनली. बिकॉज बट ये होता क्या है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो बिग फार्मर्स हैं उन्हीं को ही प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट इज़ वाई सब्सिडीज़ शुड नॉट बी गिवन. हमें सब्सिडीज़ क्यों नहीं देना चाहिए. ऑल अदर्स आर दी कि वाई सब्सिडी शुड बी गिवन, क्यों देना चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज़ वाई सब्सिडी शुड नॉट बी गिवन. सम economics believe that the one technology is found profitable and is widely adopted, subsidies should be phased out since their purpose had been served. कुछ इकोनॉमिक्स हैं वही कहते हैं कि अगर कोई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद हमें प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड किए वहाँ से उसको इजेक्ट कर लेना चाहिए और विड्रॉ कर लेना चाहिए. बिकॉज द पर्पस हैज़ बीन सर्व्ड. जो हमारा पर्पस था कि
लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें, तो वो पर्पस क्या हो गया, फुलफिल हो गया। फर्दर सब्सिडीज़ आर मीन टू बेनिफिट द फार्मर्स, बट अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र सब्सिडी ऑल्सो बेनिफिट द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री अमंग फार्मर्स। ठीक है, सब्सिडीज़ आर बेसिकली क्यों होता है कि फार्मर्स जो हैं उनको बेनिफिट मिल जाए, और फर्टिलाइज़र्स वो सब्सिडीज़, वो फर्टिलाइज़र सब्सिडी प्रोवाइड किया जाए, सो दैट दे कैन परचेज ऑल द फर्टिलाइज़र्स फ्रॉम द फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्री एंड अमंग फार्मर्स, की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को भी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना चाहिए कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन करे, और फार्मर्स को भी देना चाहिए। द सब्सिडीज़ लार्जली बेनिफिट द फार्मर इन द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन। जो सब्सिडीज़ है वो बेनिफिट क्या करता है फार्मर को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रीजन है, जो बहुत अच्छे रीजन है, बस वहीं पे ही क्या होता है, सब्सिडीज़ उनको मिलता है। देयरफॉर इट इज़ आर्ग्यूड दैट देयर इज़ नो केस ऑफ कंटिन्यूइंग विद द फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़। तो इसमें ये है कि जब एक प्रॉस्परस रीजन है जो ऑलरेडी एफ्लुएंट है, वहीं पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही है, तो हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। इट डज़ नॉट बेनिफिट दी टारगेट ग्रुप। जो टारगेट ग्रुप है, जो जहाँ पे वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लो फार्मर्स है, जब उनको वो सारी सब्सिडीज़ मिल नहीं रही है, तो ऐसे इस जगह पे हमें क्या करना चाहिए, वी डू नॉट प्रोवाइड दी all the subsidies, and it is also the huge burden on the government finances. If the subsidies are provided, then it will ultimately lead to the burden on the government.